Good morning, student. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Okay. Have you any idea about the last lecture? Chapter પૂરું કર્યું હતું sir. Sir, we completed the chapter. Okay, that means yes, we have completed our unit number 4. Okay, am I right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so unit number 4 is about the partial differentiation. Okay, now we are going to discuss about the unit number 5. It is the application of partial differential equation. Okay, so we are going to discuss about the application of partial differential equation in today's session. So this is the outline of our unit number 5, applications of partial differentiation. So first we talk about the Maclaurin's and Taylor series expansion in two variables. We already have the idea about the Maclaurin's and Taylor series expansion for one variable. Am I right or wrong? Yes. Yes. Yes, sir. Right. Okay. In unit number 1, you learn about the Maclaurin's and Taylor series expansion for one variable. Then in second topic, we discuss about the tangent plane and normal line to a surface. Then we go for the maxima and minima of a surface. Then we go for the Lagrange's method of multiplier. Then Jacobian is one type of determinant, but in that determinant you have to substitute the partial derivatives terms. Okay, so it is about the Jacobian. So we will discuss about it. Then at last of this unit, we discuss about the errors and approximations. So there are different kinds of error. Whenever you perform any experiment, then you should have a error or approximation is that. So we discuss about that. Okay. So today I am going to discuss about the first 5.1, and it is Maclaurin's and Taylor series expansion in two variable. Okay. So we will discuss about that. So Taylor series expansion in two variable. So first you have to familiar with first variable, that means only one variable. So I start with that. Okay, so have you any idea about the Taylor series expansion for one variable? Anybody? फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ाया गया है. ओके, तो आपको याद होना चाहिए कि व्हाट इज इट. एनीबडी? Is it visible to all? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes. So what is the Taylor series expansion in one variable? कोई बोलेगा मुझे? या भूल गए? F of x equal to f of Yes, x y. very good. F of x is equal to F of a plus 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 and x minus a raised x to minus 1 1 factorial factorial into f dash a into the f dash a plus x minus a whole square upon 2 x minus factorial a raised to 2 factorial f double dash a. whole dash of and so on. Okay, Right. ऐसे चलता रहेगा, है ना? Okay, so this is the Taylor series expansion in one variable. So we can extend this formula for two variable also. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? F of x y आ सकता है. ओके, लेकिन फर्स्ट जो यहाँ पे हम करेंगे वो f of x y की जगह पे a प्लस एच b प्लस के वाली हम यूज करेंगे पहले. ओके, तो पहले वो डिस्कस करेंगे, देन वी गो फॉर द f of x y and then we go for the Maclaurin series. Okay, so first we talk about f of a plus h b plus k. Means if you find the Taylor series expansion for two variable a plus h b plus k, then the Taylor series expansion is f of ab plus bracket h del f upon del x at ab. Means ये आपको del f upon del x जो फाइंड किया है
एट ए बी पे फाइंड करना है. ओके, प्लस के डेल एफ अपॉन डेल वाई एट ए बी. Mute yourself. Thank you. Then next one is plus 1 upon 2 factorial h square del square f upon del x square at point AB plus 2hk del square f upon del x del y at point AB plus k square del square f upon del y square at point AB and so on. This is the infinite series. Okay. तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा टेलर सीरीज एक्सपेंशन. सो इज देयर एनी डाउट? एनीबडी? Any confusion? Any doubt? Quick response. Sir, repeat, sir. Sorry? Student, I am asking about the doubt. If you have doubt, then we will discuss. Otherwise, we will go further. Repeat करो ना सर एक एक बार. बार रिपीट Okay. यस, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के मीन्स अगर हम जानते हैं कि वन वेरिएबल के लिए क्या है, देन वी थिंक अबाउट द टू वेरिएबल. तो व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट टू वेरिएबल देयर इज ए पार्शियल डेरिवेटिव. तो यहाँ पे एफ डैश ए है, उसकी जगह पे पार्शियल डिफरेंशिएशन आ जाएगा. एफ डबल डैश है, उसकी जगह पे भी पार्शियल डिफरेंशिएशन आ जाएगा. अब हमको पता है कि एफ डैश करना है तो हमारे पास दो है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई. तो वहां पे वो इन्वॉल्व हो जाएगा. और यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 3 आएगा. यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई एंड डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर. तो यहाँ पे 3 टर्म आएगी. ओके, तो इस तरीके से उसको एक्सटेंड किया गया है. सो आवर टेलर सीरीज एक्सपेंशन इज एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी प्लस एच डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट पॉइंट ए बी प्लस के डेल एफ अपॉन डेल वाई एट पॉइंट ए बी plus 1 upon 2 factorial h square del square f upon del x square at point AB plus 2hk del square f upon del x del y at AB plus k square del square f upon del y square at AB and so on. So this is the Taylor series expansion in two variable when a plus h and b plus k is there. Clear everybody? Yes, sir. Yes, sir. Now Yes, sir. in second form we consider a plus h is equal to x and b plus k is equal to y. So what is my h here? X minus a and k means y minus b. So we replace a plus h is equal to x, b plus k is equal to y, h is equal to x minus a and k is equal to y minus b in this expression. So we get f of xy equal to f of ab means वो तो as it is रहेगा क्योंकि उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं. Then h means हमको रखना है x minus a del f upon del x at point ab as it is plus k means y minus b del f upon del y at point ab. Okay, then वहां पे ब्रैकेट कंप्लीट. उसके बाद प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आपका आएगा x माइनस ए होल स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एट पॉइंट ए बी प्लस 2x माइनस ए y माइनस बी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई एट पॉइंट ए बी प्लस y minus b whole square del square f upon del y square at point AB and so on. Clear? Okay. So this is our original Taylor series with the variable x and y. Clear? लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म है वो x minus a and y minus b है. तो whenever you have the example, then think about the x minus a and y minus b, then go further. Okay? Clear everybody? Any doubt in this slide? Student, any doubt? No, sir. No, sir. Okay.
सो देन नेक्स्ट जो हमने किया वही का वही है, पुटिंग x इज इक्वल टू a प्लस एन h and y is equal to b plus k, then we have the expression for Taylor series expansion f of xy is equal to f of ab plus x minus a del f upon del x at ab plus y minus b del f upon del y at ab plus 1 upon 2 factorial x minus a whole square del square f upon del x square at ab plus 2 x minus a y minus b del square f upon del x del y at ab plus y minus b whole square del square f upon del y square at point AB and so on. So this is the Taylor series expansion in two variables. Okay. Then Maclaurin series expansion in two variable. तो Maclaurin series के लिए क्या करेंगे हम? What we do? A equals to 0. A equal to 0. A is equal to 0 and B is equal to 0. Okay. तो ये दोनों ही दोनों, क्योंकि ये टू वेरिएबल में 0 0 पॉइंट होगा, वन वेरिएबल होता है तो 0 अकेला होता है, तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट A is equal to 0 and B is equal to 0 in this series. So we have f of xy is equal to f of 0 0 plus x minus 0, that means x del f upon del x at 0 0 plus y del f upon del y at 0 0 plus 1 upon 2 factorial x square del square f upon del x square at 0 0 plus 2xy del square f upon del x del y at 0 0 plus y del square f upon y square del square f upon del y square at 0 0 and so on. So this is the Maclaurin series expansion. Is it clear everybody? Yes, sir. So, Okay. Now what we do in example? Example में क्या करेंगे? Anybody? So example में हम step number 1 करेंगे, A and B निकालेंगे. Okay. Then step number 2 हम find करेंगे f of AB, नहीं sorry, उससे पहले हम state करेंगे. So state Taylor series expansion तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन हम स्टेट करेंगे वहां पे और उसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1. ओके. देन नंबर 3, स्टेप नंबर 3 व्हाट वी डू, वी फाइंड 6 क्वांटिटी हियर. सो फर्स्ट एफ ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, देन डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट ए बी फाइंड करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई एट ए बी फाइंड करेंगे, तो 3 हो गया. एंड सेकंड ऑर्डर के लिए 3, दैट मींस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एट ए बी निकालेंगे, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकालेंगे एट ए बी, एंड लास्ट में हम फाइंड करेंगे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर एट ए बी. ओके. सो दिस इज द स्टेप नंबर 3. ओके. देन नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या होगा, substituting all these value in equation 1, that means substituting all these values in equation 1. So is it clear everybody? What is the flow of the example? Yes, sir. Okay, so we start first example. Okay, तो यहाँ पे मैक्लोरिन सीरीज जो हमने डिराइव किया वही है. देन फर्स्ट एग्जांपल, एक्सपांड f of xy is equal to xy square plus xy plus 3 in powers of x minus 1 and y plus 2 using Taylor series expansion. Okay, so my step number 1 is find a and b. So what is my a and what is my b? 1. 1 A or minus 2. and b yes, 1 1 or Minus and 2. 2. minus 2. Minus So a is equal to 1, b is equal to minus 2. That is my step number 1. Now I state the Taylor series expansion for this. So f of xy is equal to क्या होगा, f of ab जो हम जानते हैं वो लिखेंगे पहले, f of ab plus h del f upon del x at ab plus सॉरी नॉट h नहीं आएगा वहां पे, x माइनस a वाला फॉर्म है. यस. तो यहाँ पे
x माइनस ए वाला फॉर्म आएगा, तो x माइनस ए डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट ए बी, y माइनस बी डेल एफ अपॉन डेल y एट ए बी, देन प्लस 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा x माइनस ए होल स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एट पॉइंट ए बी, ओके ए बी के आगे, प्लस 2x माइनस ए वाई माइनस बी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई एट ए बी, ओके, एंड देन प्लस y minus b whole square del square f upon del y square at ab equal to, sorry, plus dot dot dot. Clear? So is it clear up to here? Anybody? Yes, sir. Okay. Then next I substitute the value of a and b in this expression. So I am substituting that. So f of 1 minus 2 plus x minus 1 del f upon del x at 1 minus 2 y plus 2 del f upon del y 1 minus 2 plus 1/2 factorial x minus 1 square del square f upon del x square 1 minus 2 plus 2x minus 1 y plus 2 del square f upon del x del y at 1 minus 2 plus y plus 2 whole square del square f upon del y square 1 minus 2 and so on. Okay, so this is my equation number 1. So this is my step number 2. Clear everybody? Yes, sir. Yes, sir. Now what is my step number 3? दो ही स्टेप, Sorry? और इसमें दो ही स्टेप लिखने हैं। हाँ, दो ही स्टेप इसमें, एफ ऑफ एक्स वाई वाला ये पूरा जो हमारा फॉर्मूला है वो, एंड जो ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आएगा वो, दैट इज हमारा इक्वेशन 1. क्लियर? ओके, तो स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 हो गया. नाउ वी गो फॉर द स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3, व्हाट इज माय स्टेप नंबर 3? एनीबॉडी? एफ ऑफ ए बी फाइंड करना, फिर Fixed del value x find. तो मैं पहले ये फाइंड करूंगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड 6. मुझे ये 6 क्वांटिटीज फाइंड करना है, और उसके बाद स्टेप नंबर 4 में मुझे ये सारी क्वांटिटी यहाँ रिप्लेस करना है. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, सो फर्स्ट क्वांटिटी हम फाइंड करते हैं. तो f ऑफ 1 माइनस 2 क्या होगा? देखो, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 3. तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 4 माइनस 2 प्लस 3. तो टोटल कितना होगा? 5 तो 5 मेरा फर्स्ट क्वांटिटी मिल गया. देन सेकंड क्वांटिटी कौन सा फाइंड करना है? डेल एफ अपॉन डेल एक्स. सो व्हाट इज माय डेल एफ अपॉन डेल एक्स? क्या होगा? तो यहाँ पे x का 1 y स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस y. हाँ. अब डेल एफ बाय डेल एक्स एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? मुझे 1 माइनस 2 दिया है, तो यहाँ पे 4 माइनस 2, तो टोटल आंसर 2 आएगा. देन डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या होगा? तो यहाँ पे 2xy, यस, 2xy प्लस 2xy x. ओके, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई एट 1 माइनस 2 आप फाइंड करेंगे, तो 2 इंटू 1 इंटू माइनस 2, तो माइनस 4 प्लस 1, तो इट गिव्स मी माइनस 3. ओके, तो ये मेरा हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई. नाउ इफ आई गो फॉर द डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा मुझे? तो इसी का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा? 0. तो मैं डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एट पॉइंट 1 माइनस 2 फाइंड करूं तो पर भी 0. ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या मिलेगा? इसे रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ मुझे मिलेगा 2x. इसमें मैं पॉइंट सब्स्टिट्यूट करूंगा 1 माइनस 2, तो आई हैव 2.
into 1. Okay, then last one is del square f upon del x del y. तो व्हाट इज माय del square f upon del x del y? तो आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो कि इसका विथ रिस्पेक्ट टू y करो या फिर इसका विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों का आंसर सेम ही आ रहा होगा. तो यहाँ पे देखो y स्क्वायर प्लस y का विथ रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 2y प्लस 1. 2y plus 1. ओके, तो del square f upon del x del y at point 1 minus 2 तो मुझे मिलेगा minus 4 plus 1. It gives me minus 3. Done. Okay, now next step is substitute all these value in equation 1. तो यहाँ पे मेरा 1 minus 2 मेरा 5 था तो यहाँ पे 5 आ जाएगा. यहाँ पे मेरे पास है 2, यहाँ पे मेरे पास है -3. ओके, यहाँ पे मुझे मिला है 0. ओके, यहाँ पे मुझे मिला है 2, सॉरी -3 एंड लास्ट वन जो मिला है वो 2 है. ओके, सो इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस एंड अरेंज दैट then we have the required Taylor series expansion. Is it clear everybody? Yes sir. ओके, तो यहाँ पे देख लो वही का वही जो यस सर. वही है. f फाइंड किया, fx फाइंड किया, fy फाइंड किया, उसके बाद fxx फाइंड किया at point 1 minus 2, उसके बाद fyy at point 1 minus 2, fxy 1 minus 2 and then substitute all these values in the given इक्वेशन नंबर 1 जो हमने डिराइव किया है वो, तो उसमें उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया सारी वैल्यू. अब वो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सिर्फ 2 फैक्टोरियल है उसका आंसर 2 आता है तो उसको कैंसिल करेंगे, बाकी की रिमेनिंग टर्म एज इट इज. तो 5 2x minus 1 minus 3y plus 2 minus 3x minus 1 y plus 2 plus y plus 2 whole square and so on. अब यहाँ से आपकी थोड़ी गलती हो जाती है और वो गलती क्या है कि कुछ लोग होते हैं उनको थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना होता है तो y plus 2 स्क्वायर को वो ओपन कर देते हैं, लेकिन मत करना क्योंकि आपको ये बोला गया है कि मुझे x minus 1 एंड y plus 2 के पावर में ही चाहिए. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर. यस सर. तो दिस इज माय रिक्वायर्ड, दैट मींस व्हिच इज required Taylor series expression या फिर expansion. Okay, done. So any doubt, any confusion in this example? Anybody? सर No sir. सर वो आपने निकाला ना डेल एक्स बाई डेल वाई वाला, हाँ, सर वो हर बार सेम नहीं आता है ना? हर बार सेम ही आएगा. जो आपको एग्जांपल दिया गया होगा ना, इसकी बात कर रहे हो ना fxy की ना? fx y. हाँ, तो आपको जो स्टेटमेंट दिया होगा उसमें सारे स्टेटमेंट में सेम ही आ रहा होगा. ओके सर इसका ये नोटेशन होता है वो उल्टा होता है ना? हाँ, उल्टा होता है. यस, यू आर राइट. मीन्स ये जो हम करेंगे उसमें fxy इज इक्वल टू fyx होता ही होगा. क्लियर एवरीबॉडी? यस सर. ओके, Yes sir. एनी अदर क्वेश्चन? यस और नो? No sir. No sir. Okay, then next example, expand f of xy is equal to e raised to xy in powers of x minus 1 and y minus 1 using Taylor series expansion. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है वो फटाफट कर देना है हमको. a is equal to and b is equal to, what is my a? 1 b 1. ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा, सेकंड स्टेप मुझे f of xy is equal to फॉर्मूला स्टेट करना है. f of ab प्लस यहाँ पे x minus a del f upon del x at ab. ओके, ये भूलना मत नहीं तो मार्क्स काट लिया जाएगा. y minus b del f upon del y at ab. ओके, देन प्लस 1 upon 2 factorial x minus a whole square del square f upon del x square at point ab plus 2x minus a y minus b
del square f upon del x del y at point AB plus y minus b whole square del square f upon del y square at point AB and so on. Okay, so you have to mention this. Then replace the value of a and b. तो यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 1 1 है ना, everywhere a and b की जगह पे 1 1 हो जाएगा. Now next task is find the 6 differentiation. Okay, partial differentiation. तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट फाइंड करेंगे f of 1 1. तो f of 1 1 हमने फाइंड किया, 1 मिनट. ओके, चलो f of 1 1 में फाइंड कर रहा हूँ. तो f of 1 1 क्या होगा, कौन बताएगा, जल्दी बताना है. हाँ, E. Okay. Yes. Then del f upon del x. Del f upon del x क्या होगा? E raised to x y, e raised to x y. y e raised to x y. Y e raised to x y. X y का y आएगा, y e raised to x y. Now you have to find del f upon del x at point 1 1. तो 1 1 find करेंगे. Yes. E. Then you have to find del f upon del y. So del f upon del y is x e raised to x y. X e raised to x y. Okay, so del f upon del y at point 1 1 will be 1 into e raised to e. Yes. Then del square f upon del x square क्या मिलेगा मुझे, तो यहाँ पे इसका विथ रिस्पेक्ट टू x करना है. तो x करेंगे तो y तो उसके लिए कांस्टेंट ही है, तो y e raised to xy और फिर से एक y आएगा, that means y square हो जाएगा. Yes, sir. So del square f upon del x square at point 1 1 will be 1 into e, that means e. Okay, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आएगा del square f upon del x del y. तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इसका विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं, इसका विथ रिस्पेक्ट टू y कर सकते हो या फिर इसका विथ रिस्पेक्ट टू x कर सकते हो. तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y करने जाएंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा. यस और नो? E raised to x y Yes, sir. plus So x y raised to x y. xy plus y as it is and e raised to xy का e raised to xy into क्या आएगा, X. X. ओके. तो यहाँ पे इसका अगर आप सॉल्व करेंगे del square f upon del x del y at point 1 1, so I have e plus e. 2e. यहाँ पे मिलेगा. देन del square f upon del y square, तो मुझे मिलेगा इसका विद रिस्पेक्ट टू y करना है, X square e raised to x y. x square e raised to x y. वेरी गुड. So del square f upon del y square at point 1 1 is equal to क्या आएगा, yes. This is the स्टेप नंबर 3. अब स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो यहाँ पे e आ जाएगा, यहाँ पे e है ना, यहाँ पर भी e है, यहाँ पर भी e है, सिर्फ यहाँ पे 2e है, बाकी एवरीवेयर वी हैव e. डन. So this is the required Taylor series expansion. So you can see here f11 find किया, fx find किया, fy find किया, उसके बाद fxx, fyy and fxy, देखो 2e आया. ओके एंड सो ऑन. ये भूलना नहीं है, डॉट 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 दिखना चाहिए क्योंकि वो कंटिन्यू रहता है ना. हम तो सिर्फ ये 6 क्वांटिटी फाइंड करते हैं, लेकिन सीरीज स्टॉप नहीं होगा, वो आगे ही बढ़ता जाएगा. Therefore, f of xy is equal to एवरीवेयर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और 2 फैक्टोरियल में से 2 को जहां जहां पे कैंसिल होता है वहां पे कैंसिल किया और उसके बाद उसको हमने लिख दिया रीअरेंजमेंट में. और एवरीवेयर e है तो हमने e को कॉमन ले लिया. सो विच इज रिक्वायर्ड टेलर सीरीज एक्सपेंशन. सो इज देयर एनी डाउट इन दिस एग्जांपल, एनीबॉडी? No sir. What about others? Give me your quick response. No, sir. No, sir. No sir. No, sir. Okay. No, sir. Yes. Thank you for your confirmation. Okay, next example. F of xy is equal to x e raised to y plus 1. We have to expand this function in powers of x minus 1 and y using Taylor series expansion. So again, step number 1 is find out a and b. So what is my a? 1. 1. B? 1.
जीरो। वहां से हम स्टार्ट करेंगे तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम पूरा उसकी फॉर्मूला स्टेट करेंगे। ओके, डोंट फॉरगेट इट। देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 1 0, तो 1 0 सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा ये दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला। अब f ऑफ 1 0 क्या होगा? 1 e raised to 0 प्लस 1। यस, 2 आएगा ना। जल्दबाजी नहीं करना है, ये आप कर सकते हो, आई नो इट, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में गलती हो जाता है ना, तो डोंट डू दैट। ओके, नेक्स्ट डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या होगा? तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो ई रेज टू वाई ही बचेगा। यस, तो डेल एफ एक्स एट 1 0, सो ई रेज टू 0, ई रेज टू 0। यस, डेल एफ अपॉन डेल वाई तो क्या होगा? x एज इट इज रहेगा, e रेज टू y का e रेज टू y, y का 1। ओके, तो डेल f अपॉन डेल y एट 1 0 विल बी 1 into e रेज टू 0, तो 1 मिलेगा। ओके, नाउ इफ यू फाइंड डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x स्क्वायर, सो व्हाट इज माय डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x स्क्वायर? इसका विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो e रेज टू y का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 0 e raised to y 0 Square f upon del x square at point 1 0 gives me 0. So del square f upon del x del y. तो फर्स्ट का विथ रिस्पेक्ट टू x करो, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू y, एंड नीचे का विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों में से कोई एक करो, तो यहाँ पे e raised to y का e raised to y ही हो जाएगा। यस, सो del square f upon del x del y at point 1 0 gives me e raised to 0 1। डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? इसका विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, तो क्या आएगा? x e रेज टू y ही आएगा फिर से भी। सो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर एट पॉइंट 1 0 इज 1 इंटू e रेज टू 0 मीन्स 1। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सो Yes, sir. आपको Yes, पार्शियल sir. डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। अगर वो आप अच्छी तरीके से कर सकते हो देन यू कैन डू दिस एग्जांपल वेरी इजी वे। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट 1 0 मैंने फाइंड कर दिया, एफ एक्स एक्स वाई फाइंड कर दिया, एफ वाई फाइंड कर दिया। ओके, एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई, एफ एक्स वाई, और ये सारी वैल्यू मैं जो इक्वेशन 1 है उसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो यहाँ पे देखो, आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो है y है, देखो y माइनस 0 मीन्स y हो जाएगा, तो बी केयरफुल। ओके, कीप इन योर माइंड यहाँ पे y एंड यहाँ पे y स्क्वायर, क्योंकि b 0 है इसीलिए। ओके, तो वो भूलना मत। तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया। अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद 2 फैक्टोरियल जो है वो जहां पे कैंसिल होता है वहां पे करेंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज। क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, Yes, sir. यहाँ पे स्टेप किया है लेकिन आपको नहीं करना है, मैंने मना किया आपको, है ना, क्योंकि इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमको ये x माइनस 1 दिखना चाहिए। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so Yes, which is sir. required Taylor series expansion for given function. Now next, expand f of xy is equal to e raised to x into sin y in powers of x and y using Taylor series expansion. So what is my a is equal to and b is equal to? 0. 0 0 तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिया है टेलर सीरीज एक्सपेंशन, लेकिन एक्चुअली है क्या? मैक्लोरियन सीरीज। यस, आपको ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है ना, तो बी केयरफुल। आपको फाइंड तो ए बी से ही करना है, लेकिन यहाँ पे जो भी वर्ड लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इफ वी सब्स्टिट्यूट a is equal to 0 and b is equal to 0 in Taylor series expansion, then it will be a Maclaurin series expansion. So यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. सो यहाँ पे a is equal to 0 and b is equal to 0। और दूसरा कि ऐसा मत सोचना कि स्टेटमेंट में गलती है, स्टेटमेंट करेक्ट है।
ओके सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है ए एंड बी, देन गो फॉर द टेलर सीरीज। ओके सो इज इक्वल टू 0 बी इज इक्वल टू 0 मुझे मिल गया है। देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पूरा फॉर्मूला यहाँ पे स्टेट करूंगा, उसके बाद उसमें 0 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा, देन दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। सो स्टेप नंबर 2 इज कंप्लीटेड। नाउ हम फाइंड करते हैं पहले एफ ऑफ 0 0। तो व्हाट इज एफ ऑफ 0 0? 0 क्योंकि Zero. जीरो 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 ओके सो डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या आएगा? साइन वाई e raised to x into sin y. यस ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही होगा एंड साइन वाई कांस्टेंट है तो वो एज इट इज। नाउ डेल एफ यस डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट जीरो फाइंड करेंगे तो अगेन जीरो मिलेगा क्योंकि यहाँ पे साइन जीरो जीरो रहता है। डेल एफ अपॉन डेल वाई फाइंड करते हैं तो डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या होगा? ई रेस टू एक्स उसके लिए कांस्टेंट टू एक्स cos y यस cos y यस डेल एफ अपॉन डेल वाई एट पॉइंट 0 0 फाइंड करेंगे तो ई रेस टू 0 वन 0 वन को 1 देगा। वन यस देन डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन करना है तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स साइन वाई उसके लिए कांस्टेंट है तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एट पॉइंट 0 0 गिव्स मी 0। डन ओके नेक्स्ट डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो यहाँ पे इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई करो तो क्या होगा? ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स एंड कॉस वाई डेल एक्स डेल वाई जीरो जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आई गेट 1। देन डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो व्हाट आई हैव इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो माइनस यस minus d to x sin y. e raised to x sin y हाँ डेल स्क्वायर जीरो होगा. ऑन डेल वाई स्क्वायर एट 0 0 गिव्स मी 0 है ना क्लियर क्योंकि साइन 0 है। अब ये सारी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो दैट इज द रिक्वायर्ड टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन। तो यहाँ पे देखो f0 0 हमने फाइंड कर दिया, fx फाइंड कर दिया, fy फाइंड कर दिया, fxx फाइंड कर दिया, fyy फाइंड कर दिया और उसको हमारा जो इक्वेशन 1 था उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये मत भूलना डॉट 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 ओके y प्लस 1/2 फैक्टोरियल 2xy प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें से 2 कैंसिल करके जो भी आंसर हो मिल रहा है दैट इज आवर रिक्वायर्ड टेलर सीरीज एक्सपेंशन। सो इज देयर एनी डाउट इन दिस एग्जांपल एनीबॉडी? No. No sir. No, sir. No sir. No, sir. Next, expand f of xy is equal to cos x cos y in powers of x and y up to second order terms। देखो यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन दे रही है, कब तक जाना है आपको? Second order term. सेकंड ऑर्डर। जो कर रहे हैं वही करना है लेकिन सिर्फ थोड़ा ट्विस्ट करके दिया, नथिंग एल्स। ओके तो a इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? Zero. b is equal to 0। Again this is the Maclaurin series expansion। ओके तो यहाँ पे हम 0 0 से स्टार्ट करेंगे, f of x y is equal to पूरा जो फॉर्मूला है वो स्टेट करेंगे, उसके बाद हम उसमें 0 0 पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन वी फाइंड इक्वेशन नंबर 1 और उसके बाद हम फाइंड करेंगे f of 0 0। तो f of 0 0 क्या होगा? 1. cos 0 cos 0 that means 1। okay then del f upon del x फाइंड करेंगे तो minus sin x y. Minus sin x into cos y. minus sin x into cos so del f upon del x at 0 0 क्या मिलेगा? 0. f upon del y फाइंड करें तो minus sin y Minus sin y into cos x. yes you are right yes okay then del f upon del y at 0 0 again 0 square f upon del x square Minus cos x into cos y.
यस, माइनस cos x into cos y, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एट पॉइंट जीरो जीरो करेंगे तो minus -1 देन डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई अगर आप निकालते हो तो क्या मिलेगा मुझे, इसका विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स x into sin y डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई एट पॉइंट जीरो जीरो फाइंड करेंगे तो व्हाट वी गेट 0 जीरो। 0 देन डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या मिलेगा मुझे, क्या होगा, minus cos x into cos y minus cos x into cos y cos y, very good. So del square f upon del y square at point zero zero I have minus 1. minus 1. minus So minus now 1 substitute all these value in equation 1. So we have 0 0 1, fx 0, fy 0, fxx minus 1, fyy minus 1, fxy हमने find किया वो 0 मिल रहा था. Okay, now if I substitute all this value in the equation 1, so we have 1 plus 1 upon 2 factorial minus x square minus y square. सिर्फ ये माइनस जो कॉमन है उसको बाहर लेके उसको अच्छी तरीके से लिख देंगे. So 1 minus 1 upon 2 x square plus y square and so on, which is required series expansion up to second order term. Done? Everybody got it? yes sir Okay, then this is the example, so that e raised to y log 1 plus x is equal to x plus xy minus x square by 2 and so on. देखो इसमें आपको बोल दिया है कि ये फंक्शन लेना है एंड उसका आंसर ये होगा, तो इसमें तो पूरे मार्क्स आ सकते हैं कि नहीं? yes sir Yes. कुछ भी करके ये लेके आना है, लेकिन यहाँ पे जो बिग टास्क है वो a एंड b फाइंड करना है. तो a एंड b क्या हो सकता है, एनीबॉडी? 0 0 0. 0 यस यस, यहाँ तो दिख रहा है कि 0 0 है, लेकिन अगर यही टर्म डिस्टर्ब करके आपको x माइनस 1 होल स्क्वायर दिया है तो 1,0 यस, तो उस हिसाब से जब भी आपको इस टाइप का प्रूव दैट पूछे तो आपको ये भी डायरेक्ट नहीं मिलेगा. तो एट दैट टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट द स्क्वायर टर्म्स. ओके, स्क्वायर टर्म्स में आप जैसे ही फोकस करेंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा. क्लियर एवरीबॉडी? yes sir Okay, तो we start with the a is equal to 0, b is equal to 0 and यहाँ पे दूसरा लिखना पड़ेगा आपको f of xy, क्योंकि यहाँ पे आपको सीधा नहीं बोला है, बाकी सारे एग्जांपल में आपको सीधा बोल दिया था. तो what is my f of xy here? e raised to y log 1 plus हाँ, तो ये थोड़ा चेंज आया. ओके, तो ये आपको स्टेप नंबर 1 में कंप्लीट कर देना है. उसके बाद स्टेप नंबर 2 अगेन हम f ऑफ xy की पूरी सीरीज एक्सपांशन लिखेंगे. उसके बाद उसमें 0 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1. देन फाइंड आउट द f ऑफ 0 एंड ऑल अदर पार्शियल डिफरेंशिएशंस. ओके, तो 0 0 क्या होगा? 0. 0 तो यहाँ पे Zero. 0 मीन्स 1 है, लेकिन log 1 आएगा तो 0 हो जाएगा. f डेल एफ अपॉन डेल एक्स फाइंड करेंगे तो e रेज टू y उसके लिए कांस्टेंट है एंड log 1 प्लस x का e raised to y 1 plus x 1 अपॉन 1 प्लस x होगा. तो आप डेल एफ अपॉन x एट पॉइंट 0 0 फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा e रेज टू 0 अपॉन 1 प्लस 0 मीन्स 1. ओके, देन डेल एफ अपॉन डेल वाई सिमिलर वे, डेल एफ अपॉन डेल वाई करेंगे तो e रेज टू y का e रेज टू y एंड log 1 प्लस x एज इट इज रहेगा उसके लिए. तो डेल एफ अपॉन डेल x एट y डेल y एट पॉइंट 0 0 क्या मिलेगा मुझे? 0. ओके, देन डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, कौन बताएगा? उसके लिए e रेज टू y तो वहां पे ही, और 1 अपॉन 1 1 plus x raised to -1 करेंगे -1 Raised to upon 1 -1. plus x square. minus 1 -1 upon 1 plus x square. x whole square.
Okay, so del square f upon del x square at point 0 0 gives me -1. Minus. Yes, sir. My Del square f upon del x del y. What I have, इसका with respect to y करूंगा तो e raised to y का e raised to y रहेगा 1 plus x तो as it is ही है. Okay, that means del square f upon del x del y at point 0 0 मुझे मिलेगा 1. Okay, then del square f upon del y square. What is my del square f upon del y? यस, e रेज टू y log 1 plus x, उसका विथ रिस्पेक्ट टू y फिर से करना है तो e रेज टू y का e रेज टू y log 1 plus x. into log 1 plus x. डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y स्क्वायर एट पॉइंट 0 0 अगर हम फाइंड करेंगे तो e रेज टू 0 log 1 plus 0. 0. Okay, so we substitute all these values in equation 1. So we have like this, f of 0 0 0 मिला है, fx 1 मिला है, fy 0 मिला है, fxx -1, fyy 0, fxy 1. Okay, now substitute all these values in equation 1. So we have x plus 1 upon 2 factorial minus x square plus 2xy and so on dot dot dot. Then उसको simplify करो तो x plus xy ये मैंने पहले लिख दिया minus x square by 2 and so on, जो मुझे चाहिए था, which is required. That means LHS is equal to RHS हो गया. So we prove it. Any doubt in this example? Anybody? No, sir. No, sir. Okay, so this is about Sir. हाँ ये slide, this one. Okay, देख लो. Okay, any doubt, any question in today's session? Anybody? सर इसके बाद एक बार फर्स्ट स्लाइड दिखा देना, वो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ. फर्स्ट First- स्लाइड. सर 1 minute. Okay, फर्स्ट स्लाइड मीन्स कौन सा बोल रहे हैं आप, यूनिट के बारे में? सर उसके नहीं, नीचे नहीं। वाला. ओके, टेलर Yes, सीरीज sir. एक्सपेंशन इन टू वेरिएबल, ये हमने यूज नहीं किया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे a प्लस एच जैसा हमको चाहिए. मीन्स अगर आपको कोई बोले कि 101 फाइंड करो, f ऑफ 101 101, तो आपको उस टाइम पे इसका यूज आएगा. लेकिन ऐसा एग्जांपल आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है. क्लियर एवरीबॉडी? इसके बाद वाले. इसके बाद वाले. this one we are using this one. Okay, सर एक बार इसके बाद एग्जांपल वाले 1 भी. 1 मिनट 1 by 1 करता हूँ. 1 मिनट रुको. डन, ले सर लिया? हो गया ये. हो गया ना स्क्रीनशॉट? ओके, यस. नाउ एग्जांपल नंबर 1, दिस वन, ये रहा. ओके, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप. मैं भेज ही रहा हूँ आज, डोंट वरी. आज भेज देना है उत्तरायण से PDF भेज पहले. दो ना. हाँ, आज उत्तरायण से पहले आप कर देना, इसलिए भेज ही दे रहा हूँ मैं. आज भेज दूंगा आपको. डन? ओके सर. Okay, so is there any doubt, any confusion in सर this इसमें lecture? +3 नहीं आया है. Sorry? इसमें हम लोग ने डेल एफ बाई डेल एक्स है तो हाँ. वो 2 आ रहा है. डेल एफ बाई डेल वाई है तो वो 3 आ रहा है. तो इसमें -3 क्यों लिया है? -3 ही आ रहा है. और यहाँ पे गलती, यहाँ पे x आएगा और आंसर -3 आएगा. आंसर -3 सही है. आ गया या नहीं मिला? हम इसलिए इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं रहे थे. हमने अलग से यहाँ पे सॉल्व किया था. आपको याद है ना, सब कुछ यहाँ पे डिराइव किया था और उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूट किया था. हाँ मिल गया. मिल गया ना? ओके, नाउ इज देयर एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनीबॉडी? नो सर. ओके, No, sir. so we stop here. So good day.